So, hello and warm welcome to our guest today. Good morning, Mrs. Sinha. Good morning. Uh, for all my Sakar audience, I would like to introduce Mrs. Sinha. Uh, वो एक आईटी प्रोफेशनल है और उनको ट्रैवलिंग बहुत पसंद है और सबसे ज्यादा पसंद है वो ट्रैवलिंग के मोमेंट्स को कैप्चर करना अपनी लेंस के थ्रू टू हर कैमरा. दैट इज समथिंग विच शी एंजॉयज अ लॉट. So thank you, ma'am, for joining us today for this session Pleasure is all mine. and connecting with the Sakar community, which is a community which we have recently created for pre-adoptive and adoptive parents. Nice. I would like to tell the Sakar community कि मैम और उनकी जो बेटी है उनको अभी मैम ने रिसेंटली साकार की विजिट करवाई है और शी वाज इंट्रोड्यूस्ड टू द प्लेस where from where her nurture started before she went to her own home. True. So we'll also be, talking about the journey which as adoptive parents, ma'am and sir had. Today we only have Mrs. Sinha with us. So हम लोग ये जो आज का वीडियो सेशन है, this is specifically our Mother's Day celebration. We couldn't do it last Sunday, the Mother's Day, लेकिन हम लोग ये ऐसे ही treat कर रहे हैं that we are celebrating motherhood and we are celebrating the motherhood with one of our Sakar moms. Thank you. So, having started with this beautiful smiling face, let us start our interview. Sure. Ma'am, how would you describe motherhood, or how would you describe in very few words what does आपके लिए माँ होना, motherhood, what it is? So for me, if you see the motherhood, the word what specified to me is tiny arms around you saying "ma." Hmm. Means for them you are the whole world. This is motherhood for me. Yeah. So when the child wraps her arms around you, And saying the "ma." feeling Yes. and utters mom. And how does that, how would you describe that feeling? What does आपके लिए वो क्या लाता है? A completion. Hmm. Because एक बच्चा जो आपकी जिंदगी में लाता है वो कोई और नहीं ला सकता. Because they are so innocent Hmm. and they are so love giving that nobody Hmm. else in the world can give you that. Yeah, yeah. So that beautiful feeling of completion Yes. is something what you would describe motherhood to be. Yeah. Mm. Wonderful. Anything else you wanted to add? The innocence means after being that was a motherhood before Annika came to my life, but after that, her all innocent smiles. And whenever she is wake up in the morning and say good morning with the smiling face, that is a motherhood to me. And whenever she uh, come across any problem or somebody is bullying her or something, and then she come to me and seek advices, that is a motherhood to me. Mm-hmm. Yeah, Means for her I'm the only thing which can guide her, help her, play with her, yeah, always available. yeah. So currently motherhood for me right now with my daughter is like that. So as you mentioned that I love traveling, she is my new travel partner. We have covered a lot of states together in India. Just Mm-hmm. me and Anik, my daughter. Wow. So that is your bonding time. That is how you bond Yes, with her yes. and Even build she that has connection. connection and she has also converted into a travel freak. So if she has to choose with between anything and travel, she will choose हाँ. travel. सो आपको जो अच्छा लगता है आपने वेरी स्लोली स्लोली उसमें भी इम्बाइब करना शुरू कर दिया है द ट्रैवल लव. Yes, and she was always means she loved it.
I've seen children cribbing about हम्म हम्म walking, godi le lo, but हम्म she never does that. हम्म वो बहुत पहले मैंने उससे कहा था, बेटा अगर आपको घूमना है तो अपने पैरों पे घूमना है। कोई हम्म गोदी नहीं लेगा। तो वो अपने पैरों पे ही घूमती, बट मीन्स व्हेन शी वाज 5 years old, she हम्म walked around 6 kilometers without cribbing. हम्म हम्म We went for trek and all those stuff we do. So she's always ready, and now she loves traveling. वंडरफुल वंडरफुल। सो आप दोनों ने अपना एक एक सुकून बनाया है, Yes. हाँ, जिसमें हाँ. आप दोनों एक दूसरे से बहुत ही सुंदर तरीके से कनेक्ट करते हो अलोंग द ट्रैवल जर्नी। आपकी भी Yes. बहुत प्यारी जर्नी चल रही है अपनी बेटी के साथ। Yes. या सो वेरी ब्यूटीफुल मदरहुड डिस्क्रिप्शन मैम। Thank you. सो जब few years ago when you were looking out for options, or जब your option of adoption came forth, so at that time what did adoption, or what did being a parent mean to you before you actually kind of decide कि हाँ मुझे यही करना है? Okay. So I had multiple miscarriages. हम्म So that was my biological reason. But then हम्म I came across a mother in my society itself. She had a child, हम्म first her born child, and then she adopted a girl. हम्म हम्म And when I saw that, the bonding हम्म between the siblings, हम्म the reaction of our society where I live towards हम्म the child, that gave me a confidence that I can adopt too. So motherhood I can uh, acquire by adoption as well. हम्म And my since I was always already suffering from the miscarriages and my health issues because of miscarriages, my family was very supportive. They हाँ जी। only said that go for adoption. हम्म So that way, I was very lucky that my parents, my in laws, my sister, before I was into adoption, they also told me, go for adoption, think about it. हम्म Then, when I saw that there's no difference with your own born child and adopted child, हम्म it gave me confidence, and I went through the adoption process. हम्म। Was there something which you prepared yourself for during this decision making? Uh, During the decision making, no, because my family was very supportive. I never had a second thought also. But Mm, definitely when I decided that I will adopt, then what kind of preparation I need to do. mm, So I did attended the sessions mm, with the adopted parents, which was conducted in Pune. mm, So that gave me a confidence. It means whatever inhibition I had mm, regarding how how to talk to the child, what all I should talk, what I shouldn't with the society, with my immediate family members, what should be mhm, my behavior towards the child, mhm. because mother is born when a child comes in her life. Yes. So that is also a new feeling for her as well. Yeah. Yeah. So She is for also a that, newborn mother. yeah. So that way I was bit afraid that how I should behave, what exactly should my actions. So Hmm. during attending different sessions helped Mm-hmm. me to come out of the inhibitions. Hmm. 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 And is it fine to just share one inhibition which you had during that period, which Yeah. you felt? So actually, I had this. I don't know why. That somehow, if the adopted children are there, they might not because my family was very supportive. I know that. या सो वो वाला टेंशन ही नहीं था कि टेंशन ही उनको नहीं था कि कन्विंस करना पड़ेगा, वो देवर हाँ, ऑलरेडी ऑन द सेम पेज they एज are यू। already on the same page और कोई वहाँ difference में neither my husband neither his family.
So हम्म that way I was very lucky. But somehow I had a feeling that somehow society doesn't accept it because I own a house here हम्म and I won't change my house here. या So that way I was like, if society doesn't accept her, if the children are not playing with her, हम्म then how I will react, what I will do. But looking हम्म at the other parent, and हम्म I talked to her how the society is reacting हम्म to it. हम्म But she told me there is no such problem. If you हम्म give that confidence, society will also accept with that confidence. सो आप अगर अपने आप में वो कॉन्फिडेंस रखोगे तो सोसाइटी अपने आप ही उसको एक्सेप्ट कर लेगी, दैट इज हाँ, व्हाट यू आर यस। सेइंग। और हम्म मतलब ये इनहिबिशन था मुझे अर्लियर, बट उसने ऐसा हम्म बोला तो मैंने एक्सेप्ट किया उसको, आई कैन हम्म सी दैट ऑल्सो नाउ। हम्म सो बेसिकली अगर हम अपने आप में कॉन्फिडेंट है, हम अपने आप में विश्वास रखते हैं कि मैं जो कर रही हूँ वो बराबर कर रही हूँ, हाँ, ये मेरा बच्चा है, तो हाँ, सोसाइटी भी उसको आपका बच्चा ही देखती है। दे डोंट लुक एट इट एज अडॉप्टेड और नेचुरल बॉर्न चाइल्ड। यस, दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस। थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट, बिकॉज हमारे जो पेरेंट्स हैं जिनको अभी अडॉप्शन का प्रोसेस चालू है उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है जानने के लिए, बिकॉज ये सभी को दिस क्वेश्चन अराइजेस इन एवरीबॉडीज माइंड कि यस, सोसाइटी, लेकिन आपके लिए वो आपका जो इनर सर्कल था वो ऑलरेडी रेडी था। yes, that way I was very lucky because I was always open कि my daughter is adopted, तो बहुत लोग आते हैं मेरे साथ पूछने। तो बहुत हम्म बार उनका इशू रहता है मेरी फैमिली वाले ही नहीं मानेंगे। तो दैट हाँ वे आई जी। कंसिडर माई सेल्फ वेरी लकी हम्म कि कभी भी मुझे ये प्रॉब्लम नहीं आई कि मुझे फैमिली को भी कन्विंस करना, दैट वो पार्ट हाँ वाज जी। नेवर देयर इन फॉर मी। एंड बिकॉज योर इनर सर्कल वाज कन्विंस्ड, यू वर कन्विंस्ड, आपके लिए जो सोसाइटी को जो फेस करने का इनहिबिशन था वो स्लोली स्लोली वही चला हाँ, गया। पहले मतलब जब मैंने उस लेडी से बात की जिसने अडॉप्ट किया था, उसका एक फर्स्ट बॉर्न था और एक उसने अडॉप्ट किया, उसका देखा मैंने और सोसाइटी के रिएक्शंस देखे तभी खत्म हो गए थे। बट यू नेवर नो ना हाउ योर चाइल्ड विल बी ट्रीटेड। Yeah, You can't create a group for her, she has to create her own group. yes, certainly. So that is very important for a healthy child कि वो कहाँ खेलेगी, किसके साथ खेलेगी। The social connect is very important. Yes. Yeah. Uh, what helped you as a parent to take that decision to go ahead? जैसे आपने भी बोला कि there were multiple factors, but as a parent when you look at it कि मैं एक बच्चे की माँ बनने वाली हूँ अभी या parent बनने वाली हूँ, was there any particular thing which kind of prompted you to take that decision? No, Particular actually, feeling, I thought, sorry. a particular feeling or a thought जिसने आपको जिस जिस वो बोलते हैं ना कि जैसे सील कर दिया डिसीजन को। Yeah, so I always wanted to be a mother. I had that medical condition कि नहीं हो रहा था खुद का। तो फिर मेरे हस्बैंड ने कहा इतना मेडिकल का करना ही नहीं है, मैं वो मेंटल टॉर्चर से जाना ही नहीं है। हम्म एंड दे वर ओपन टू अडॉप्शन। हम्म सो yeah, so it was not a very big decision making process per se, या फॉर मी externally, इट वाज, externally. yes, it was not such a big thing. I wanted to be a mother, that was okay. Hmm. So it was already 10 years of my marriage and multiple miscarriages, and my husband said that no, let's stop this medications and all, let's go for adoption. It was just a 2-minute discussion. So Hmm. for me that was not a very big discussions convincing anybody. It was just that we have to have a child. If it is not medical process, okay, let's go for adoption. It was just quick. ये डिसीजन होने के बाद आपने कुछ पर्टिकुलर प्रिपरेशन किया बिफोर एक्चुअली द चाइल्ड केम टू योर Yes, प्लेस? I as I told mentioned that मैंने द different sessions attend किए। हाँ। uh, ये there is a center in Bhartiya something Samaj something in Pune. I हम्म attended those sessions because वो हमारा वहां से ही मैंने enroll किया था।
हम्म ससुन हॉस्पिटल का भी एक है, ससुन का, वो भी मैंने अटेंड किया था. सो हम्म आई हम्म कीप अटेंडिंग दीज सेशंस विद adoptive parents हम्म so that I can be on the same page हम्म। how the adoptive parents have to behave. सो आपने अपनी साइकोलॉजिकल और थॉट प्रोसेस को थ्रू दी सेशंस कहीं ना कहीं आपने इस तरह से बनाया और वहां लेके गए कि आप रेडी थे यस. लाने के लिए हाँ, बच्चा। मैं एनी। मेंटली रेडी हाँ थी. हाँ मैं मेंटली रेडी थी. हाँ जी हाँ जी। until the person come to your life, उसके साथ क्या क्या चैलेंजेस रहते वो अलग स्टोरी है. वो बट डेफिनेटली मैं अपने आप को रेडी कर रही थी आफ्टर दीज सेशंस, अटेंडिंग दीज सेशंस. सो मेंटली रेडी आप हो चुकी थी। एनी अदर प्रिपरेशंस व्हिच यू डिड टू ब्रिंग द चाइल्ड होम या नहीं? ओके, वंडरफुल वंडरफुल। हाउ डिड द इनिशियल ट्रांजिशन, जब जब आपकी बेटी आपके घर आई तो पहले वो जो इनिशियल ट्रांजिशन होता है, हाउ हाँ, वाज दैट वो थोड़ा ट्रांजिशन? सा मेरे लिए डिफिकल्ट था क्योंकि वो जब आई थी तो मेरे लिए नया बच्चा है. मेरे पास लोग मतलब उस वक्त मेरे घर में ऐसी सिचुएशन थी कि मेरे घर से कोई नहीं आ पा रहा था. हम्म एक हाउस हेल्प थी मेरे पास. बट उस वक्त अनिका की तबीयत थोड़ी गड़बड़ रहती थी, तो मैं हम्म बार बार डॉक्टर के यहाँ जाती थी. तो हम्म डॉक्टर ने बोला मुझसे कि बच्चे के लिए प्लेस चेंज है, अभी वो बच्चा बोल नहीं पाता, तो देर इज अ साइकोलॉजिकल चेंज. इसके कारण वो इशू आएगा ही थोड़ा उसका. हम्म। तो वो उसके लिए आप उसको इमोशनली जितना कंफर्ट देंगे, या जब उसको ये जगह अपने अपने लगेगी, तब वो ऐसा नहीं होगा कि रात भर पेट पकड़ के रो रही है, मैं सुबह सुबह डॉक्टर के पास हर भाग तीन रहा चार है। हाँ भाग रही हूँ. इनिशियली 3 months वेर बिट डिफिकल्ट फॉर मी. हम्म हम्म के लिए नई जगह थी, तो वो सिर्फ गोदी में ही सोती थी. रात भर मैं गोदी हम्म में लेके सोती थी. हम्म तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट फेज था, पर डॉक्टर ने कहा कि देर इज नथिंग टू वरी. वो हम्म बच्चा जब एक्सेप्ट कर लेगा कि ये जगह में सेफ है वो, तो बच्चा तो बोलने के नहीं बता पाएगा आपको, क्योंकि वो बोलना उतना जानती नहीं है बच्चा. तो इस तरह से जब उसको सेफ प्लेस लगने लगेगा तो उसके हेल्थ में अपने आप सुधार होगा, और देर इज नथिंग टू वरी. हम्म। तो लेकिन इनिशियल आपके लिए क्या था, क्योंकि अब बच्चा रो रहा है, आप अपने आप को कैसे हैंडल कर रही थी तब? तो क्योंकि बच्चा जब मैं हेल्पलेस फील हाँ। करती थी उस वक्त. हम्म। सो कुछ आपने अपने लिए किया तब? नहीं, अगेन विजिटिंग टू डॉक्टर, डॉक्टर वाज टेलिंग मी कि नहीं ठीक हो जाएगा सब, दैट वाज हेल्पिंग मी. आई थिंक आपने उनका सुना और यू जस्ट फॉलोड थ्रू। यस, उन्होंने बोला मुझसे कि सी बच्चे के लिए अभी वो कहीं से आया है, फिर एक नई जगह था वहां एडजस्ट किया, फिर आप उसको अपने घर ले आए हो. बच्चे के लिए हर एक नया फेस है, अभी तो इतने दिनों से जिसको देख रहा था उसको नहीं देख रहा है. हम्म। और आप नए हो तो उसको लग रहा है मैं कहाँ हूँ, और डर रहा होगा, बहुत कुछ हो रहा होगा उसके अंदर, बच्चा बता भी नहीं सकता. हाँ तो जी। इसलिए उसकी तबीयत खराब हो रही है. सो मुझे ये सुनाई दिया कि आपने उसको गोदी में लेकर उसको सहलाया, उसको अश्योरेंस दिया बातों से नहीं अपने टच से कि हाँ. वो सेफ है। हाँ, वो इनिशियली बिस्तर पे सोती ही नहीं थी. मतलब हम्म वो उसको रात भर हम लोग गोदी में लेके घर में घूमते रहते थे. जब उसकी नींद पक्की हो जाती थी तभी हम उसको लटाते थे. गोदी सो छोड़ती ही वो, नहीं थी इनिशियली. या आई थिंक वो गोदी ना छोड़ना वाज इन इटसेल्फ, और यू नो कि उसको चाहिए थी गोदी, वो सिक्योरिटी चाहिए थी, और जो फिजिकल टच मिलता है गोदी में लेने के बाद, हाँ. जिससे वो बच्चे को लगता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। हाँ, बिल्कुल. वो दैट इनिशियल 3 months था वो सब, फिर बाकी सब धीरे धीरे सब ठीक हो गया. बाकी एवरीथिंग वाज नॉर्मल. आई थिंक दिस इज अ वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर प्रोसेस कि आपने उसको, जहां तक वो, जब तक वो नॉर्मलाइज नहीं हुई, वो ठीक थी बाजू में रहने के लिए, तब तक आप उसको गोदी में लेके सहलाते रहे, प्यार देते रहे। हाँ. सो दैट एंड दैट केम नेचुरल, मतलब ऐसा ऐसा कुछ हाँ जी। प्रिपरेशन नहीं की मैंने. दैट केम या नेचुरल कि अब नहीं सो रही है तो गोदी में टहल के सो रही है, तो सो जाने दो. सो जाने दो। या बट दैट वो प्लेड सब अ वेरी सो वाइटल जा. रोल टू मेक हर फील सेफ। यस. इफ नाउ आई लुक एट इट, यस, दैट टाइम तो वो नेचुरली हो हो गया गया। था.
हो गया। बट यस, इट प्लेड अ रोल। तो अभी आप रिफ्लेक्ट कर रहे हो तो आपको लग रहा है कि व्हाट रोल इट प्लेड। Yes, definitely. So while you were doing that, I'm sure कि there must have been some challenges also Challenges during your related. uh, physical challenges, time challenges, emotional challenges. uh, जैसे आपने बोला कि एक पेट दर्द करता था तो आप भाग जाते थे टू डॉक्टर। दैट वाज अ चैलेंज फॉर यू एट दैट टाइम। Yes, या ऐसे और कोई चैलेंजेस थे जिसको आपको slowly you have to face those challenges in order to kind of be in a state कि आप। being a mother is always something, कुछ तो कुछ नया पॉप अप होता, बट दैट इनिशियली वाज अ बिग चैलेंज फॉर मी। वो हेल्थ इश्यूज जब उसको बहुत ज्यादा, कभी कुछ होता था कभी कुछ होता था, दैट वाज अ समथिंग which I faced. Otherwise, nothing I can say that, oh, it was so challenging for me. No, it gradually happened. So I can't recall anything of that sort. तो पहले जो साल होता है, पहले जब बच्चा आता है घर पे, तो वो अटैचमेंट जो क्रिएट होती है अपने माँ बाप से, या फिर दादा दादी से, नाना नानी से, या फिर घर से, उसके खिलौनों से। हाँ, आप कैन यू शेयर हाउ इट वाज फॉर योर डॉटर, दैट अटैचमेंट कैसे बिल्ड हुआ? बिल्ड करने का ऐसा, अब बच्चे को जहां प्यार मिलेगा अटैचमेंट अपने आप बिल्डअप हो जाता है। तो मेरे यहाँ वैसा कुछ फ्रिक्शन था ही नहीं, तो उसका अटैचमेंट बिल्ड करने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुआ। मतलब हम्म। ऑल वे वेटिंग फॉर हर। हाँ जी। तो वो फिर- अटैचमेंट बिल्ड करने के लिए कुछ है ही नहीं, इतना प्यार मिला उसको तो अपने आप अटैचमेंट मिल गया। मतलब हम्म। अगर आप किसी भी बच्चे को बहुत प्यार दोगे तो उसका अपने आप अटैचमेंट बिल्ड हो जाएगा ना। हम्म। सो सो ये इमीडिएटली हुआ बच्चा आने के बाद, या इट टुक सम टाइम टू काइंड ऑफ, नॉट जस्ट विथ यू, with her father, with her नो, grandparents? so there is a twist here. हाँ My जी। daughter is very much means the first person she always hold hand when initially was her father. हम्म। मतलब वो हम जब आ भी रहे थे फ्रॉम औरंगाबाद टू पुणे, तो जब ड्राइव करके आ रहे थे तो इनिशियली उसके गोदी में रह के बैठ गई। फिर हमने हम्म। ब्रेक लिया हम्म। खाने के लिए। उसके बाद वो गोदी जो मेरे हस्बैंड का पकड़ा, मतलब उसको थोड़ी दूर तक उसको गोदी में बैठा के ड्राइव करना पड़ा था क्योंकि वो उसको छोड़ ही नहीं रही थी। ओके। सो मुझे मतलब फ्रॉम डे वन शी वॉज वेरी अटैच टू हर फादर। आई डोंट फादर। हाउ, बट हम्म। यस, उसने वहां पे सबसे पहले उसी को पकड़ी थी उसकी उंगली, और हमेशा उसको हर चीज के लिए पापा ही चाहिए होते थे। हम्म। तो वो मेरा उसका बॉन्ड ग्रेजुअली डेवलप हुआ, हाँ बट जी। इसका अपने फादर के साथ डे वन से बॉन्ड था। या सो दैट वाज मोर इंस्टेंटेनियस। यस, दैट वाज मोर इंस्टेंटेनियस। अभी भी हर वीकेंड वो और उसके फादर ट्रैक के लिए जाता है। दैट इज फिक्स्ड पार्ट ऑफ द वीकली रूटीन। तो क्या आपको लगता है हैविंग दिस फिक्स एक्टिविटी या फिक्स रूटीन, या दिस कि बच्चे को पता है ये सर्टेनिटी, डू यू थिंक दैट इज समथिंग व्हिच हेल्प्स द चाइल्ड टू फील? यस, दैट हेल्प हर इन डिसिप्लिन। एक एक्टिविटी है, ये तो करना ही करना है। हम्म। पापा के साथ वीकेंड पे हमें वॉक के लिए जाना ही जाना है, फिक्स्ड है। हाँ जी। तो ऐसा कभी हुआ है कि वो पापा को मूड नहीं है लेकिन इसको मूड है और ये लेके जा रही है पापा को, चलो जाना है? हाँ, बहुत सारी चीजें होती। माय हस्बैंड इज अ ग्रेट कुक। सो वीकेंड तो में जनरली हम नॉन वेजिटेरियन है तो वो नॉन वेज बनाते हैं, तो उसका सुबह से शुरू हो जाता है कि पापा आज तो ये बनेगा ही बनेगा। अच्छा। अच्छा। अगर एक वीकेंड नहीं बनाए तो नेक्स्ट वीकेंड, लास्ट वीकेंड आपने बोला था बनाने को, नहीं बना तो इस वीकेंड तो बनना ही बनना है। सो वो पुश करती है कि करो, चलो वो करो। कुछ बहुत कुछ करती है। जैसे माय हस्बैंड इज वेरी इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ पर्सन, ही डजंट लाइक टू सोशलाइज। तो हम्म। शी पुट हर फुट डाउन, आपको आना ही पड़ेगा, हम्म। नहीं आओगे। सो देर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी आई विल टेल यू दैट व्हाट हैपेंड वाज, हम जब भी कुछ फंक्शंस होते हैं वी वेयर ट्रेडिशनल ड्रेसेस।
So I was हम्म wearing a sari, I make her wear a lehenga, हम्म and my husband was in pajamas. हम्म So she told her father to change. हम्म We are dressed up so well. Why you're wearing so pajamas? You हम्म have to change. हम्म हम and he सबने had no change other किया. option. No other. She never gave him option. Then he had to change. So now it's a mandatory field for everybody at home, हम्म which earlier only I used to follow कि हम्म, त्योहार है तो हम ट्रेडिशनल ड्रेस पहनेंगे, हाँ हम जी, सब पहनेंगे. अब सब पहनेंगे क्योंकि बेटी ने दैट बोल इज अ दिया, मैंडेट। हाँ मैंडेट। मम्मा कर रही है, मम्मा के लिए नहीं करेगी, आपको भी करना पड़ेगा. अच्छी बात है, आपको करना आपका ही काम पड़ेगा. कम हो गया है ना। बहुत बहुत इजी हो गया. अगर ऐसे हस्बैंड को बोलो चेंज कर लो, वो सब चलता है, ऐसा क्यों है वैसा क्यों, नो, देर इज नो अदर ऑप्शन. ही हैज टू डू वॉट एवर शी इज सेइंग. तो आपने जैसे बोला कि उसका जो बॉन्ड अपने पापा के साथ था वो इंस्टेंटेनियस था, हाँ, अ, और आपको वो बिल्ड करना पड़ा। करेक्ट. वाइल बिल्डिंग दैट, ऐसा कोई ऐसी कोई बाउंड्री या डिसिप्लिन या ऐसा कुछ, बिकॉज कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम लोग कुछ कोशिश कर रहे होते हैं तो हम लोग लीवे दे देते हैं फॉर फ्यू थिंग्स बिकॉज वी वांट टू क्रिएट दैट बॉन्ड। नहीं, ऐसा ऐसी मेरे कोई पास स्टोरी? नहीं. ऐसी कोई पर्सनालिटी मेरी है नहीं कि अगर ये करना है तो तुम्हें करना ही है. तो हम्म। आई मस्ट मॉम, यू कैन से दैट. अच्छा बिकॉज जी। एक किस्सा जो मुझे बहुत हंसी आती है, आज भी मैं अपने कलीग्स को बताती हूँ. देयर वॉज अ कैट प्लेइंग विद अ किटन, एंड वो हम्म। नैप करती थी से उसको. तो वो अपने पापा से बोलती, पापा लगता है इसने कुछ गड़बड़ की है, मम्मा डांट रही है उसकी. तो मैंने कहा तुम्हें कैसे पता कि वो डांट रही है, उसकी मम्मा ही है. मम्मा ही सिर्फ डांटती है. ओहो। सो जब आप डांटते हो तो वो क्या करती है? वो चुप चुप हो जाती है. और फिर बाद में पापा के पास जाती है या आपके पास आती बाद में है? ठीक हो जाती है. नहीं, वो पापा के पास जाती है. अगर बहुत बड़ी गलती रहती है तो पता रहता है कोई नहीं सुनने वाला है. हम्म लेकिन अगर मैं किसी बात को लेके, मैं जैसे मैंने कल उसको डांटा हम्म और आज भी मैं गुस्से में हूं, तो उसने कहा मम्मा प्लीज, वो कल किया था मैंने, आज तो नहीं कर रही ना मैं. तो वो भी डांटती है आपको? हाँ, वो भी डांटती है. अगर मैंने उसको कहती परी इस तरह से बात नहीं करना है, हम्म। तो अगर मैंने कभी उससे चिल्ला के बात की, मम्मा धीरे बोलो, इस तरह से बात हाँ। नहीं करना चाहिए. अच्छा जी। अच्छा जी। दैट करेक्शन ऑल्सो हैपेंस. ओके। सो अभी वो उस एज में पहुंच गई है कि शी नोज हाउ टू काइंड ऑफ हैंडल सिचुएशन। नहीं नहीं नहीं, वो ना मुझे लगता है एज नहीं होती है, वो इनबिल्ट आता है बच्चों को. बच्चे इमोशनली बहुत स्मार्ट होते हैं. आई एम टेलिंग यू, व्हेन शी वाज 3 or 4 years old, ये हम्म। इंसिडेंट उस टाइम के. तो वो अगर आके मैंने आपको चिल्ला, बोलती थी कि हाँ आप इस तरह से मुझसे बात नहीं कर सकते हो. मैंने कहा, तुम गलती करोगे तो सही करना मेरा काम है, इसलिए मैं बात कर सकती हूँ. सो यू आर अ वर्किंग मदर, राइट? यस. So what support system, helped you to kind of when जैसे आप पहले adoption center से लेके आए बच्चे को, या जब when Pari was growing up, the twos, the terrible threes बोलते हैं, the terrible twos होता है, terrible four होता है, terrible five होता है. So what was your support system फुल टाइम being a मेट थी मेरे working mom? पास. जी। सो फुल टाइम मेट थी इनिशियली. देन जब मैंने अडॉप्शन लीव लिया था, जो हम्म कि मुझे 3 months का मिला था अपने ऑफिस से. हम्म सो तब मेरे पास फुल टाइम मेड थी. उसके बाद हम्म, मैंने डे केयर वॉज अ वेरी गुड ऑप्शन. आई हाँ ऑलवेज जी। सजेस्ट पेरेंट्स टू गो फॉर अ गुड डे केयर सिस्टम. बिकॉज वहाँ बच्चा मेड के साथ रह के उसकी बातें सीखेगा, और क्या सीखेगा पता नहीं. बट हम्म जो एक्सपोजर डे केयर में मिलता है बच्चे को, हम्म बॉन्डिंग का, खाने का, पीने का, सब बहुत अच्छा रहता है. सो डे हम्म केयर वॉज. एंड आफ्टर दैट 2 hours के लिए एक और मेरी हेल्पिंग हैंड आती थी. हम्म 9 हो जाती थी. सो दैट वे इट वॉज मैनेज. बट कोविड टाइम वॉज वेरी बिट डिफिकल्ट, हम्म बिकॉज तब तो कोई मेड नहीं थी. हम्म तो उस वक्त किसी तरह खुद ही संभाला.
How कोई old ऑप्शन was ही she नहीं। at that time? 3 years old। So a सो daycare and taking house help and was there anything else which you kind of अपने अपने डे टू डे में कुछ बदलाव लाया to kind of manage? पहले मेरा ऑफिस से फिक्स टाइमिंग्स नहीं रही थी आने की। सो हम्म चूंकि अब बेटी है तो 7 बजे मुझे पिक करना ही है डे केयर से, तो मुझे निकलना ही पड़ता था। हम्म सो अगर बाई चांस मैं नहीं आ रही थी तो मैं हस्बैंड को पिकअप बोलना पड़ता था। दैट वाज द हम्म ओनली चेंज आई मेड हम्म प्रोफेशनली। एंड आई पुट कैमराज एट माई होम, हम्म कि अगर मैं कहीं नहीं हूं तो कैमराज देख सकती हूँ क्या कर रही क्या नहीं कर रही। बिकॉज आई एम वर्किंग, तो मेरा एक रूम में मीटिंग कर रही होंगी, तो शी वोंट बी, आई वोंट एबल टू सी हर गुड क्या कर रही है, या मेड कैसे ट्रीट कर रही है, मेड कैसे हम्म खाना खिला रही है। दे वे आर ऑल गुड बट स्टिल कीपिंग एन आई ऑलवेज हेल्प्स। सो दीज टू थिंग्स आई मेड दोज चेंजेस। My next question is, what's been your proudest moment so far as a mother? सो एज अ मदर, जब भी वो कोई प्रॉब्लम में रहती है वो आके सबसे पहले मुझे ही बताती है। So I think that I'm doing good as a mother. So that way I feel very proud that I have created a bond that she can talk to me anything about her issues till now हम्म with me. हम्म And ऐसा कोई इश्यू secondly, रहा है मैम जो इट वाज आपके लिए इट वाज थोड़ा सा नया? हाँ, मतलब बच्चे छेड़ रहे हैं कुछ पुश कर फिजिकली, रहे तो हैं। वो मेरे लिए नया था। मैंने कितने छोटे बच्चे। देन I spoke to that boy's mother as well, कि ऐसा ऐसा चल रहा है। बट आई वॉज वेरी हैप्पी कि वो मुझे आके सब कुछ बता रही है। मैं हम्म उसको हमेशा करेक्ट करती हूँ कि बेटा तुरंत ही बोलना है। हम्म हम्म सो बिकॉज आई वॉन्ट हर टू बी कॉन्फिडेंट अबाउट हर सेल्फ। हम्म So there is she is learning taekwondo and she is doing pretty well there. हम्म। वो महाराष्ट्र से अपने एज कैटेगरी में गोल्ड जीता था, तो दैट वाज अरे आल्सो वेरी वाह, प्राउड। बहुत बढ़िया। Yes, या, अ and प्राउड मोमेंट there इंडीड। yes, so there is an incident. What happened was she practiced a lot, so हम्म उसके कारण ना उसकी क्लास ड्रेस फट गई। हम्म ओके, हम्म 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 सो शी वाज लाइक, मैंने क्या किया बेटा तुमने, सब तो हम्म चिढ़ा रहे थे। शी वाज हम्म worried and came to me and told me that incident happened. मैंने कहा व्हाट यू डिड एट दैट टाइम। उसने कहा हम्म मम्मा मैंने इग्नोर कर दिया उनको, मैं रोई नहीं वहां पे। मैंने कहा हम्म वेरी गुड बेटा कि तुम रोई नहीं वहां पे और तुमने अपने को हैंडल किया। अगली बार बोलना कि मैं इतना प्रैक्टिस करती हूँ तो मेरे कपड़े फटते हैं, तुम प्रैक्टिस करोगे तुम्हारे भी फटेंगे। देन शी वॉज हम्म वेरी हैप्पी। ओके, बट आई लाइक द वे शी हैंडल्ड हर एंड शी वॉज जस्ट हम्म 7 year old एट दैट टाइम। हम्म तो आई वॉज लाइक ओके, बच्चे तो छेड़ना शुरू कर देते हैं। हाँ जी। अच्छा देखो ये दिख रहा है ये दिख रहा है, बट हम्म शी वॉज composed at that time हम्म that I think that I'm able to raise her well, that हम्म she was not frightened, which is a very obvious situation for anybody of any age. अच्छा, आप सो सो देयर वर, अभी आपने दो तीन प्राउड मोमेंट बताए। Yes. जस्ट टू रिफ्रेश कि व्हाट स्टक विथ मी इज दैट कि आपने वो ट्रस्ट क्रिएट किया कि वो आपको आके कुछ भी बता सकती है एंड आप उसके लिए हो। Yes. दैट वाज वन विच स्टूड आउट। दूसरी चीज है कि जो भी हुआ है वो इमीडिएटली बताना है। हाँ, वो क्या करती है, वो पता नहीं किस सोच में रहती है, तुरंत नहीं बता मम्मा उस दिन हुआ था, किस दिन हुआ था पता नहीं। हाँ जी हाँ जी। तो कभी कभी होता है कि एक हफ्ते की बात वो आके बताएगी मुझे, जबकि मैं रोज हम्म, पूछती हूँ उससे कि क्या हुआ बेटा, आज क्या हम्म, हुआ। हम्म।
पर आई डोंट नो, बट समडे शी विल टेल मी इंस्टेंटली एज वेल, बट वो कभी भी नहीं बताएगी, तुरंत नहीं बताएगी कोई चीज। हम्म। हम्म। जैसे मेरी आदत थी बचपन में, हमें आके घर पे मम्मी को सारा दिन का बताती थी, हम्म। विच आई हम्म। डोंट फाइंड विद हर। हम्म। आई मेक हर पॉइंट कि जब भी मैं ऑफिस से आऊँ, बेटा तुम्हारा दिन कैसा बीता, क्या हुआ आज? कुछ हम्म। नहीं, ऐसी स्कूल गई थी, कुछ नहीं हुआ। हम्म। फिर मम्मा उस दिन हुआ था, किस दिन हुआ था नहीं पता। लेकिन ये अच्छी बात है कि उसको, वो आके आपसे शेयर करती है हाँ, किस दिन हुआ, कब हुआ। आई थिंक शी टेक्स हर ओन टाइम। यस, आई एम राइट नाउ, आई एम वर्किंग ऑन दैट कि तुमको तुरंत बताना है बेटा। या। उस दिन किस दिन क्या पता मुझे, किस दिन हुआ था पता भी नहीं चलता है वो। 2 दिन पहले हुआ था कि एक हफ्ते पहले हुआ था। और कई कई बच्चे, ना बच्चे कुछ कुछ चीजों को, उनके लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं होती तो वो उसको भूल जाते हैं। हाँ, वो ये फिर भी कभी मैं कभी भूल गई। बाद में याद आती है। हाँ, वो हमेशा ही बोलते, मैं भूल गई। मैंने कहा तुम भूल कैसे जाती हो, तुमको याद रखना है कि तुम्हें बताना है। फॉर एग्जाम्पल, फ्यू डेज बैक शी वॉज टेलिंग मी इंसिडेंट विच हैपेंड विद हर फ्रेंड, हम्म। 1 महीने पहले हुआ था। हम्म। तो क्योंकि जो इंसिडेंट हुआ था, मैंने उसकी मदर से बोला कि ऐसा ऐसा हुआ था, उसने कहा ये तो 1 महीने पहले हुआ था दोनों के बीच। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा, मुझे आज पता चला तो आई एम जस्ट लेटिंग यू नो अबाउट हाँ इट। जी। तो वहां पे मैं थोड़ा सा भी स्ट्रगल कर रही हूँ। कोई तुरंत नहीं हम्म। आके बताती, बट हाँ बताती है। कब बताएगी? जब उसकी मर्जी होगी। हाँ जी। आई थिंक वो बच्चे बराबर अपने आप ये कर लेते हैं, उनको जब जरूरी लगता है वो आपको आके बता देते। बहुत अच्छी बात है कि वो बताना। हाँ, मतलब जनरली अभी जैसे कुछ इंसिडेंट्स हुए, जैसे ताइक्वांडो वाला, तो तुरंत उसने बताया था मुझे। हम्म। बाकी भी incident जो बहुत ज्यादा उसके बर्दाश्त के बाहर रहता है कि कुछ बड़ा हो गया है, तो वो तुरंत बताती है। लेकिन छोटे छोटे, जैसे इससे लड़ाई हो गई, या इसने मुझे ऐसे टीज किया, जहां वो खुद हैंडल नहीं कर पाती है, हम्म। या हैंडल कर लेती है, उसको नहीं लगता इतनी बड़ी बात नहीं है, तो वो नहीं हाँ जी। बताती है। या सो सीख रही है वो अपने अपने तरीके से हैंडल हाँ, करना। मेरा सिर्फ कंसर्न रहता है कि तुम तुरंत मुझे बता दो हम्म। कि ये हुआ, तो मैं तुरंत एक्शन ले लूंगी, लेट मी डिसाइडेड। बट शी डजंट डू इट राइट नाउ। वो राइट। आराम से बताएगी, कभी तो बताएगी। सो दैट इज द केस। So there was this one question. How has adoption changed you or your perspective of parenting? Has it? So I don't know, means has the adoption, means adoption was not a very big thing for me कि हाँ, a हाँ child जी। a child has made a lot of changes in my family. I can portray that way. बिकॉज वो चीजें होती है ना, जैसे कंप्लीट फैमिली वाला जो फीलिंग आता है। एक घर और एक बच्चा है, उसकी स्टोरीज हैं, उसकी नैगिंग है, पढ़ नहीं रहा है, हम्म। उसके होमवर्क कराने हैं। सो these things have, which is a generally common, so that has also normalized in my life. That is a change. दैट इज अ चेंज, कि होमवर्क नहीं करेगी, उसके पीछे पड़े रहो, घूमते रहो, नहीं करेगी। उसके अपनी स्टोरीज रहेंगी, जब उसको पढ़ने का टाइम होगा तभी उसको सारी चीजें याद आएंगी। उसको पानी पीना है, उसको भूख लगी है, मुझे यही खाना है अभी, अभी खाना है, बहुत भूख Yeah. लगी। Everything to distract. एवरीथिंग टू डिस्ट्रैक्ट। आपने जैसे रिसेंटली आप साकार को जाके आए, वेरी रिसेंटली, हाउ वाज दैट पार्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग हर टू साकार? आपने कैसे किया? इफ इट इज ओके फॉर यू टू शेयर, आपने वो कैसे एक्चुअली उसको मैंने पहले ही इंट्रोड्यूस इसको किया? बोला था कि ड्यू टू डिफरेंट सेशन, आई वॉज ऑलवेज टोल्ड दैट बच्चे से कभी मत छुपाओ, बिकॉज शी विल लूज दैट कॉन्फिडेंस इन यू। हाँ जी। सो सो शी ऑलवेज आस्क कि मैं कहाँ से आई थी। मैंने कहा एक प्लेस है औरंगाबाद में, जहां से तुम लेके आए, हम तुमको लेके आए थे, वहां तुम मुझे आया, मैं जाके लेके आई। हम्म। ओके, तो शी वॉज ऑलवेज, मुझे जाना है, देखना है वो जगह। हम्म। शी वॉज वेरी हैप्पी
अच्छा यहाँ थी मैं, फिर ऊपर गई हम्म नीचे आई, सब देखा उसने, शी वॉज ओके। हम्म। और वहां पे उसको बहुत अच्छे से कार्ड से उसको वेलकम किया। अच्छा मैं भी ऐसे कार्ड बनाती हूँ, नेक्स्ट टाइम मैं जाऊंगी तो मैं भी कार्ड बना के लेके जाऊंगी। अच्छा। तो शी वॉज ओके विद एवरीथिंग, शी वॉज हैप्पी। या सो आपने, सो व्हाट आई एम हियरिंग इज सर, आपने पहले से ही उसको ये बताना शुरू कर दिया था यस, हाँ उसको हमेशा वो। से ही मैंने बताया। इन द डिफरेंट सेशन आई वाज टोल्ड कि उसको सीता माँ की कहानी सुनाओ, कृष्ण की सुनाओ, कर्ण की सुनाओ। हम्म। तो शी हैज रिलेटेड हरसेल्फ विद कृष्णा। हर अच्छा जी, आपने बताई वो कहानियां उसको। हाँ, हाँ मैंने उसको बताई। और उसको बहुत अच्छा लगते हैं कृष्ण भगवान, क्योंकि उसकी भी दो दो मम्मा है, इसकी भी दो दो मम्मा है। शी रिलेट्स वेरी वेल टू कृष्णा। कभी कभी उसके हम्म। पास राधा का रोल आता है किसी प्ले में, तो उसकी कहती नहीं, मैं कृष्णा का रोल हाँ। प्ले करूंगी, क्योंकि मैं हाँ। कृष्णा जैसा हूँ। हम्म हम्म। सो दैट वे इट वाज मीन्स, कभी भी आई वाज टोल्ड कि ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए सबसे जरूरी है कि आप उससे कभी झूठ मत बोलो। और झूठ ना मैंने बोलो। कभी कभी भी मैंने उसे झूठ नहीं बोला। सो वो कहानियां, बीइंग मोर ट्रांसपेरेंट विथ हर, और उसकी क्यूरियोसिटी को आंसर करते रहना, यस, आई थिंक ये तीनों फैक्टर्स मिला के आपकी जर्नी रही है उसको इंट्रोड्यूस करने की कि हाँ भाई, ये आप कहाँ से आए हो। यस। वेरी ब्यूटीफुल। So one of the questions, I think, were there any behavioral or emotional challenges? Any behavioral challenges रहे हैं आपके उसके साथ अभी तक, उसके बिहेवियर मेरे से? मेरे या या उसके? दोनों भी? सो वो थोड़ी जिद्दी किस्म की लड़की है, वो तो हर एक बच्चे की हम्म। पर्सनालिटी रहती है। हाँ जी। तो उसके कारण मेरा कभी कभी टेम्परामेंट हाई हो जाता है, बिकॉज मेरा कभी भी ऐसे, कभी मैं आउट नहीं होती थी, कभी गुस्सा नहीं करती थी, कभी लाउडली नहीं बोलती थी। उसके आने के बाद मेरा थोड़ा सा वॉल्यूम तेज हो चुका है। चिल्ला, हम्म। सुनती ही नहीं है तो अपने आप तेज हो गया है चीजें, बट यस, वो है तो है। हाउ डू यू मैनेज योर आउटबर्स्ट देन? चिल्लाती ही हूँ, गुस्सा करती ही हूँ। हाँ देयर जी। इज नथिंग टू मैनेज दैट टाइम। और हाउ अबाउट हर, लाइक उसके कौन सा नो ऐसा कोई बिहेवियर जो आपके लिए बहुत चैलेंजिंग? वो उसका जिद्दीपना, शी इज जिद्दीपन। बहुत जिद्दी है वो। कोई भी नई चीज सिखाने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। फॉर हाँ जी। एग्जाम्पल, शी इज डूइंग taekwondo वेरी वेल, हम्म बट टू मेक हर टू गो दोज क्लासेस was a challenge for me. हम्म तो वो नहीं जाना है, नहीं करना है। मैंने कहा मेरे सोसाइटी में ही taekwondo क्लासेस होते हैं, एंड आई फेल्ट दैट दिस इज वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर योर सेफ्टी। हम्म मैं उससे बोलती तुम क्लास के बाहर ही खड़ी रहो, मत हम्म जाओ, नहीं जाना है तो, लेकिन तुम्हें जाना पड़ेगा। हम्म हम्म तो हम्म। वो जाके क्लास से बोल के आ गई थी कि मैं आज सिर्फ देखने आई हूँ। हाँ जी। ओके। हम्म बट इट वाज गुड कि उसके जो टीचर हैं उन्होंने भी उस चीज को एक्सेप्ट किया कि इसका नेचर ऐसा ही है, एंड धीरे धीरे वो एडजस्ट कर गई, एंड वो अब बहुत अच्छा कर रही है, टचवुड। हम्म। अब कैसे जाती है क्लास को? अपने आप जाती है। तो सेम विद स्विमिंग, स्विमिंग के क्लासेस के लिए भी बहुत अच्छा कर रही थी, अचानक से वो जंप आया हाई डाइव करने का, अब मुझे करना ही नहीं है, करना हम्म। ही नहीं है। पूल में 1 घंटे तक खड़ी रही, सर बोलते रहे, मैंने कहा मुझे भी स्विमिंग आती है बेटा, तुम करोगी मैं पकड़ लूंगी, नहीं मतलब नहीं। वो कांपते हुए खड़ी रही स्विमिंग पूल, मैंने कहा या नहीं, हर जगह मैं नहीं तुम्हें फोर्स कर सकती, वापस आ जाओ। अच्छा। देन So at that time you had to, kind of step back a little and allow यस, her to decide. यस, तो मैंने छुड़वा दिया उसकी स्विमिंग। हम्म मैंने कहा यार पैसे दे रही हूँ, कर तो रही नहीं हो तो छोड़ो जाने। फिर हम्म उसने देखा कि उसके फ्रेंड्स जो हैं डाइव कर ले रहे हैं आराम से, हम्म
वो नहीं कर हम्म पा रही है. देन हम्म। शी अगेन ज्वाइंट एंड नाउ शी इज लर्निंग स्विमिंग प्रीटी वेल. ओके ओके। सो मुझे ये सुनाई दिया कि वो एग्जाम्पल अगर उसको कोई दिख जाता है तो वो वहां से पटक से सीख गई कि हाँ. हाँ मुझे भी ये करना है। हाँ, मुझे भी ये करना, उसको अच्छा लगना चाहिए, डिपेंड करता है. वो एग्जाम्पल हाँ, उसको पसंद भी आना चाहिए. फॉर पसंद एग्जाम्पल, आना चाहिए। हाँ, जैसे चेस के लिए हमारे सोसाइटी में बहुत सारे कंपटीशंस होते हैं. बच्चे सीख रहे हम्म होते, कर रहे होते, पर उसका इंडोर गेम से कोई इंटरेस्ट नहीं है. हम्म। तो वो कभी भी नहीं सीखना चाहती है वो. तो मतलब जो उसको पसंद होगा वो देख के या खुद से करके कर लेगी. फॉर एग्जाम्पल, मंकी बार वो घर में, मतलब नीचे सोसाइटी में जो रहते किड्स के, वो 50 बार 100 बार कर लेती है दिन भर में. बाकी बच्चे नहीं करते, बट शी लव्स डूइंग इट. तो जो इसकी हम्म इच्छा रहेगी, टचवुड शी इज फिजिकली एक्टिव, और उसका हम्म स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट है. फिजिकल फिटनेस में उसका बहुत, वो अपने से ही बहुत कुछ सीखती रहती है. हम्म करती देख, दोस्तों को देखेगी और दोस्तों को सिखाएगी भी कि अच्छा ऐसे टर्न मारना चाहिए, ऐसे फ्लिप मारना चाहिए, हम्म। कार्टव्हील कैसे करते हैं, वो खुद से उसने सीखा है सब कुछ. फिजिकल एक्टिविटीज उसे अच्छी लगती है ज्यादा, हाँ, बैठ फिजिकल के करने एक्टिविटी, वाली एक्टिविटीज। बैठ के करने का उसको कोई गेम नहीं पसंद है. हम्म। जनरली लड़के को होता है डॉल से खेलते, हो कभी डॉल से नहीं खेल रही होती है. एनीथिंग विच यू चेंज, जिस जिस जो आपको लगा कि आपके बिहेवियर में चेंज हुआ आफ्टर बिकमिंग अ मदर। मैं इम्पेशेंट हो गई थोड़ी. ओके। पहले मुझे गुस्सा बिल्कुल भी नहीं आता था, लेकिन वो सो इतना स्टबर्न हो जाती है कि आई लूज माई पेशेंस. या दैट इज द डिफरेंस आई सी. मतलब पहले कभी भी इतना, कभी भी कुछ भी गुस्सा नहीं आता था इतना, लेकिन हाँ, आफ्टर एंड एनी दैट, पॉजिटिव चेंज, बिहेवियरल चेंज विच यू हैव सीन इन योरसेल्फ एज अ मदर। इमोशनली आई मोर स्टेबल नाउ. अच्छा। सो दैट इज देयर. सो थैंक्स टू योर डॉटर दैट आप इमोशनली स्टेबल हो, यू आर इवॉल्विंग एज अ पर्सन। यस. शी हैज टेस्टेड माई लिमिट्स. I think that is what all children do, यस. right? So कभी भी वो वन डायरेक्शनल नहीं होता है, वो हमेशा टू टू वे होता है। हम भी बच्चों से सीखते रहते हैं। हाँ, बहुत कुछ. जैसे अगर मैंने बोला ना कि अगर मैंने कोई ग्रज, तुमने कल ऐसे बिहेव किया था, मम्मा मैंने हम्म कल किया था. हम्म। टुडे टुडे इज अ फ्रेश डे, लेट्स स्टार्ट अ या फ्रेश डे. या या। So how does it feel when you are saying that today is a fresh day? जब वो बोलती है आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है. बहुत अच्छा लगता है, वो सिखा रही होती है ना मुझे. बहुत अच्छा लगता तो है. आपको सीखना अच्छा लगता है उससे? हाँ, बहुत कुछ चीज सिखाती, मतलब बच्चे को देख के ना कितना वो केयरफ्री रह सकते हैं, चीजें हो गया ना. अगर कभी कभी मैं भूल बोलूँ, जाते हैं, वो पकड़ के नहीं रखते वो चीजों पकड़ को। के नहीं रखते हैं. दैट इज द करेक्ट, वो पकड़ के बिल्कुल नहीं रखते हैं कि हाँ ये कल हुआ था ना, हो गया हो गया, ठीक है ना. चलो शुरू करते हैं वापस, नया दिन नई शुरुआत। नहीं, नया दिन नहीं शुरू होती है, मैं उसमें हमेशा देखती हूँ कि वो हमेशा वैसा करती है वो. वंडरफुल। मुझे भी सिखाती है. ये चीज तो वो मुझे पक्का सिखाती है. So it has been a wonderful time, you know, looking at your journey and sharing your journey here with us. थैंक यू. Thank you, और ma'am. मेरे लिए भी बहुत Oh, अच्छा लगा, इतने दिनों बाद मैंने वो सारी वो जर्नी अपनी पेरेंटहुड की देखी, बात करते करते. इट वाज अ revisit प्लेजर. की। यस, रिविजिट किया. सो इट वाज अ ग्रेट फॉर मी एज वेल. Yeah, thank you so much. And I'm sure कि साकार की community जो हमने बनाई है, मंथन community, they will certainly learn a lot from your journey and also from your daughter's journey. यस. एंड इवन वी आर लर्निंग फ्रॉम अदर पेरेंट्स जर्नी एज वेल, इनिशियली Thank you. ऑल्सो एंड गोइंग अहेड एज वेल. बिकॉज बच्चे का हर एक स्टेज, व्हाट आई हैव अंडरस्टूड फ्रॉम मदरहुड इज, वंस अ मदर इज ऑलवेज अ मदर. उसका कोई रिटायरमेंट नहीं होता है. तो हर एक एज के साथ एक नया चैलेंज आता है, हम्म। और उसको टैकल करने के लिए आपको नया कुछ सोचना पड़ता है. बिकॉज एवरी नया चाइल्ड, सीखना पड़ता यस, है।
आपको नया ही, मदरहुड इज इवॉल्विंग प्रोसेस ना, ये सर, उसके जहाँ लिए आपको कुछ नया सोचना पड़ता है, बिकॉज बच्चे बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं, और है। अब वो कुछ ना कुछ नया ही सोचते हैं। अब जो एक बच्चे पे चलता है वो दूसरे बच्चे पे चलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। देयर वाज दिस वन क्वेश्चन व्हिच राइट नाउ जस्ट केम टू मी, कि आपकी जो पेरेंटिंग स्टाइल है, would you say it, how it is, would you say it is वो पेरेंटिंग स्टाइल अलग है आपकी पेरेंटिंग, आपको आपकी जैसे पेरेंटिंग हुई थी उससे, या वैसी ही है, सिमिलर? सो आई वुड से, जो मुझे अपनी पेरेंटिंग में अच्छा लगा था, जो अपने हम्म बचपन में वही मैं ट्राई कर रही हूँ देना उसको। बट हम्म, समहाउ मे बी मेरा इंटरेस्ट नहीं होगा उस जमाने में, या फिर मेरा एक्सपोजर स्पोर्ट्स की तरफ नहीं था, हाँ बिल्कुल जी। भी नहीं था। सो ड्यू टू डिफरेंट, जिस तरह से हमारी सोसाइटी इवॉल्व हो रही है, आई थिंक हम्म अब चाइल्ड शुड बी एक्सपोज एंड म्यूजिक sort of thing. हम्म So that way, I'm exposing her to sports, and she is liking that as well. And she goes to music class as well. Because मुझे वैसा लगता है जब मैं बहुत स्ट्रेस में होती हूँ, तो विच एक्टिविटी आई शुड डू टू टेक आउट दैट स्ट्रेस, हम्म। मीन्स ऐसा लगता है तब मुझे कोई ऐसी एक्टिविटी आती होती तो हॉबी कोई अच्छा। जो आपने परस्यू की होती? हाँ, हॉबी रिलेटेड टू फिजिकल फिटनेस, फिजिकल फुट, फिटनेस। या दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट आई फील। तो वो मेरे चाइल्डहुड में नहीं था मेरे पास। मे बी हम्म आई वॉज ऑलवेज अ वेरी बुकिश काइंड ऑफ पर्सन, सो मेरा वो हम्म एक्सपोजर ही नहीं था। और हम्म। उस वक्त भी मुझे ऐसा लगता है पढ़ाई करो, हमेशा ऐसा ही रहता था, नंबर हम्म, लाने हैं। हाँ जी। तो वो पार्ट अगर बस मेरे चाइल्डहुड से हटा दिया जाए, तो बस बाकी सब वैसा ही कर रही हूँ मैं। सो ये आई आपने एम अब ट्राइंग टू बदलाव डिसिप्लिन। लाया है अपने पेरेंटिंग स्टाइल में, कि आप स्पोर्ट्स या अदर, पढ़ाई छोड़ के अदर चीजों को इंट्रोड्यूस करवा रहे हो, हाँ, एंड यू नो आई काइंड एम ऑफ नॉट फोर्सिंग, लेटिंग हर चूज। नो आई एम नॉट फोर्सिंग हर फॉर एनीथिंग। जो हम्म मैंडेटरी फील्ड, जैसे मैंने कहा taekwondo तुम्हें आना ही चाहिए क्योंकि दैट इज अ हम्म मैंडेटरी फील्ड। स्विमिंग वाज लाइक ओके, लाइफ सेविंग स्किल है, बट हम्म, ठीक है, नहीं आ रहा तो बाद में कर लोगी। तो उसके हाँ लिए मैंने जी। फोर्स नहीं किया उस वक्त, जब वो मना की तो। फॉर एग्जाम्पल वो हम्म। पेंटिंग के लिए भी जाती, थोड़ी देर बाद बोर हो गई तो मैंने नहीं भेजा फिर। म्यूजिक के लिए वो जा रही है। सो आपने इंट्रोड्यूस करवा दिया, बाकी उसको करना है नहीं करना है, दैट चॉइस शी हैज। यस, मैंने वो चीज, एक्सेप्ट फॉर taekwondo आई डिड दैट फॉर फॉर एवरीथिंग। अदर अदर थिंग्स, जो सो वो मुझे एक ऐसा, पेरेंटिंग का डिफरेंस है, यस, वो वाला। यस, मैंने उसको ये नहीं बोला कि तुम बड़े होकर इंजीनियर बनना है, डॉक्टर, वॉट एवर यू डिसाइड, यू हैव टू अर्न। हम्म या तुम्हें ऐसा ही बनना है, तुम्हें एक अच्छा इंसान बनना है, दैट इज हम्म हाईएस्ट प्रायोरिटी। उसके बाद तुम्हें कमाने के लिए कुछ चाहिए कि मैं हमेशा तुम्हें नहीं खिलाऊंगी, हम्म और कोई नहीं रहेगा भी नहीं तुम्हें खिलाने के लिए। हम्म यू हैव टू अर्न एंड हेल्प योर सेल्फ। हम्म सो दैट वे आई वॉन्ट हर टू डू समथिंग। हम्म खैर वो मेरे पेरेंट, मतलब मेरे पेरेंट्स ने ही बोला, तो तुम्हें हमेशा इंडिपेंडेंट ही रहना है, यू हैव हम्म। टू अर्न। So that is the same thing, but yes, I'm exposing her to different activities as well. I'm not थैंक यू। forcing her कुछ भी तुमको यही करना है, हाँ या जी। क्या करना है, तुम्हें पढ़ना जरूरी है कि बिकॉज उसके नौकरी नहीं मिलेगी। हम्म। इतना पढ़ लो कि तुम नौकरी मिल जाए तुम्हें, क्योंकि हम बैठ राइट, के हमेशा नहीं तुम्हें खिलाएंगे। एंड दैट सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस व्हिच विल कम यस, अलोंग विद बोथ अभी जो चॉइसेस कर रही है एंड व्हाट शी विल बी डूइंग लेटर ऑन। यस, इवन फॉर her clothes also I let her decide, unless until it is a disaster I don't interfere. I want her to make her own choices and know the repercussions of her own choices, unless सो until it is दिस a disaster. so this is your unique style of parenting, or this is how you had been brought up? This has been my parent style as well. So Hmm. I've always decided what I wanted to do. Like there was a common conversation between me and my father. If I tell that I want to do this, so he Hmm. always used to ask me, पूछ रही हो कि बता रही हो? So if I Hmm. पूछ रही हूँ, then he will give his suggestion. He will come up with add-ons. Hmm. But if Hmm. I will say मैं बता रही हूँ,
तब वो कभी भी नहीं बताते थे तुम्हें ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, तुम गलत कर रही हो, कभी भी नहीं। ही विल कीप हिज माउथ शट till the time I'm failed Yeah, to know what were the repercussions of your decisions. yeah. And that is how you are also doing your parenting Yes, in because this I think that aspect that with is her. very important. In future, you won't blame anybody else कि तुमने मेरे Hmm, लिए डिसाइड किया था इसलिए मैं hmm, फेल हुआ. hmm, hmm. So which I don't like in any kind of person. You Yeah, have तुम तुम्हारा ये राइट है. अगर तुम डिसीजन पूछोगी मैं बताऊंगी. अगर तुमने डिसीजन ले लिया तो तुमने लिखा होगा कि क्या इसके रिpercussions हैं और क्या इसका गेन है. तो यू हैव लुक बोथ वर्क बोथ ऑन इट. यू कैन डिसाइड. yeah. सो आई थिंक दैट दैट पर्सनालिटी हेल्प्स. Yeah, certainly. So I think what stands out is that ki, she has a choice and she can make a choice. And even if she doesn't, if it doesn't work, you are there for her. Yes, she That is should what make a choice. She should be confident about her choices. about making her choices. Yeah. Yes, So a strong mother raising a strong girl child. I thank think you. I actually want her to be a strong and independent. I yeah. don't like that. And Chukre. मदर्स डे के लिए इससे अच्छा और कुछ हो ही नहीं सकता कि वी आर हैविंग एन इंटरव्यू विद अ मदर who has embraced motherhood in her own style. Yeah, thank you. And for me also, on Mother's Day, talking about my motherhood is also a great thing. Thank you, ma'am, for sharing your journey with us, and all the best to you being a mother and a successful woman. Thank you so much. Yeah? Thank you. Bye.